Nirmal ladies and gentlemen. I'm Hiral Dadia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, as we discussed on Monday as well, what's the read and what's the impact that we've seen basis the US inflation data that has come in? Okay, so yesterday was a major game changer. The inflation data, which I told everyone is expected to be around 8.1%. 8.1% was the expectation, but the actual number came at 8.3%. So in spite of lower oil prices, in spite of the fact that we've seen oil prices going down sharply, we have seen inflation still moving up. So this is a big problem right now for the US government, that in spite of all the positive reasons available in the market for inflation to go down, the inflation is still not coming down, and the majority of the inflation is up because of the US food prices have shot up. So some or the other thing is killing US. So now why yesterday gold went down and why Dow Jones went down by 1200 points, I would like to explain everyone. Because what happened after the data, that the expectation of interest rate will be hiked by 100 basis point by Federal Reserve is market started to price in that. So because of that, we saw dollar index strengthening, and because of that, we saw US yield strengthening, and because of that, we saw everything going haywire. Because if the interest rates are moving up fast in a fast pace, then the commodity prices cannot go up. Then the equity also should go down. And yesterday we saw massive bloodbath across everywhere. Because now, what is the fear? That 8% inflation and no growth from last 2 quarters, the GDP growth of US is negligent, minus 0.5%. So just imagine a scenario, economy of the US, which is estimated to be somewhere at $23 trillion, is producing no growth and having 8% inflation. So central bank are going to be very aggressive, and that's why this took place. So I'll translate everything in Hindi. So हमने देखा, मैंने आप लोग को कहा था कि इन्फ्लेशन अगर 8.1 से ऊपर आएगा तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और सब कमोडिटी में सेलिंग आएगी. तो कल जब इन्फ्लेशन का डेटा आया 8.1 एक्सपेक्टेड था और आया 8.3%. बट द वर्स्ट पार्ट इज कि इवन दो क्रूड के प्राइजेस $125 से कम होके $100, $100 से $90 आए, फिर भी इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा नीचे नहीं आया. क्यों? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजों के लेकर जो इन्फ्लेशन है वो शूट अप हो गया. तो जो वर्ल्ड मार्केट में शॉर्टेज है खाने की, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया. तो अभी सेंट्रल बैंक ये इन्फ्लेशन को कम करने के लिए पहले 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले थे. वो कल के डेटा के बाद ऐसा हो गया 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे. तो गोल्ड में और दूसरी कमोडिटी में ये सब चीज डिस्काउंटेड नहीं थी कि फेड अगर 100 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्या होगा. सबको लग रहा था 75 या 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट होगा हाई, और अभी सीधा जो फ्यूचर मार्केट है इंटरेस्ट रेट की वो इंडिकेट कर रही है 100 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ेगा. सो इसके कारण डाउ जोन्स में हमने बड़ा क्रैश देखा, और इसके कारण हमने हर एक कमोडिटी में फॉल. कॉपर 25 रुपए नीचे आ गया, क्रूड एक बार 200 रुपया नीचे आ गया, और गोल्ड और सिल्वर दोनों 1-1.5% नीचे आ गए. सो नाउ कमिंग बैक टू क्या लग रहा है आगे जाके. सो आई थिंक सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा गोल्ड और सिल्वर के लिए. गोल्ड और सिल्वर में मेरा व्यू ऐसा है कि एक बार ऑन द डाउन साइड $1685 या मैक्सिमम $1680, उससे ज्यादा गोल्ड नीचे नहीं लग रहा है मुझे. क्यों? क्योंकि ये जो 100 बेसिस पॉइंट है वो ऑलरेडी मार्केट प्राइस्ड इन कर रहा है. सो थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है गोल्ड. आज इंट्राडे के लिहाज से एक बार 50,000 का स्टॉप डाल के बाई कर सकते हैं. ऊपर में 50, 300, 350 आता है तो बेच दो. सो आज इंट्राडे के लिए मैं बाइंग रिकमेंड कर रहा हूँ. बट ब्रॉडली गोल्ड को चलने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 दिन 2 दिन और करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है. आज डॉलर इंडेक्स को देखना है, अगर 110 के ऊपर डॉलर इंडेक्स निकलता है तो गोल्ड सिल्वर फिर से नीचे जाएगा. सो 110 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर डॉलर इंडेक्स. वो ब्रीच करना बहुत जरूरी है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर टू गो डाउन. सो प्लीज कीप अ क्लोज आई ऑन दैट. दूसरा मेटल्स की बात करेंगे. सो इन मेटल्स माय व्यू इज दैट मेटल प्राइसेस आर गोइंग टू गो डाउन. सो कॉपर अराउंड 655 के आसपास सेल कीजिए, 645-42 एल्यूमिनियम सेल कीजिए, जिंक सेल कीजिए. जिंक 280 का टारगेट आ सकता है. इसका रीजन एक ही है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और यूएस में हाउसिंग प्राइसेस अभी गिरना चालू होने वाला है. तो स्ट्रॉन्गर डॉलर और वीक हाउसिंग, सो
So it's not a good combination for base metal prices. जहां तक अभी थर्ड क्वेश्चन जो रहता है हमेशा ऑयल का, सो अभी ऑयल क्यों बढ़ रहा है? ऑयल कल बाइडेन साहब ने की टीम ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अगर $80 क्रूड आता है, जो अभी फिलहाल 86 चल रहा है, तो हम क्रूड का रिजर्व भरना चालू कर देंगे. सो बाइडेन साहब पिछले 6 महीने से अपना जो रिजर्व है उसमें से क्रूड बेच रहे हैं प्राइसेस नीचे लाने के लिए. तो अभी उन्होंने खुद ही फ्लोर डाल दी कि अगर 80 आता है तो हम ही खुद बाई करेंगे. सो $80 टेम्पररी ऑयल के लिए एक फ्लोर हो जाएगा. मेरा व्यू अभी भी सेल ऑन प्राइस का ही है. आज के इवनिंग सेशन में 50-60 रुपया अभी हमने टेक्निकली एक बाई कॉल जनरेट किया है अभी फिलहाल, बट वो उसका टारगेट आते ही मैं रिकमेंड करूंगा कि वहां से आप थोड़ा फिर से सेल कर सकते हैं. सो 60-70 रुपया एक स्पाइक देखने मिल सकता है ऑयल में, जो अभी फिलहाल डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ है, 109.70 से 109.40-45 हुआ है, तो थोड़ा बढ़ेगा इवनिंग सेशन में. उसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं. आपको 50-60 रुपए के लिए लॉन्ग करना है तो करंट मार्केट प्राइस पे आप लॉन्ग कर सकते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. Right, Kunal, in fact, in terms of a few questions that are coming in, हाँ, very quickly in terms of the questions, one is gold 52,000 कब तक आएगा? मुझे लग रहा है ये दिसंबर जनवरी के बीच पे 52,000 आएगा गोल्ड. और नीचे में आपको एक बार मैक्सिमम 48,500 टू 49,000 के बीच में किधर लेवल देखना पड़े. अगर आप M2M भर सकते हैं यहाँ से 1,000-1,500 रुपए का तो खड़े रह सकते हैं. अगर आप M2M नहीं भर सकते तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. दूसरा क्वेश्चन है सिल्वर को लेके. सिल्वर इंट्राडे में थोड़ा बाउंस लग रहा है मुझे, 400-500 रुपया बढ़ सकता है. एक वीक के हिसाब से भी मेरे को बहुत ज्यादा मेरा व्यू ऐसा है कि मंदी नहीं होगा. विक्रांत भाई नेचुरल गैस ट्रेड कर रहे हो. नेचुरल गैस में मेरा व्यू क्लियर नहीं है. आई एम आउट फॉर इन्वेस्टर कैंप, सो मैंने आज देखा नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू गाइड यू. सॉरी. आई लेट यू नो. आई हैव योर ईमेल एड्रेस. आई विल मेल यू कोई व्यू होता है तो. और लास्ट क्वेश्चन है इफ 110 हैपेंस ऑल कमोडिटी गो डाउन. हाँ, अगर डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर जाता है तो फिर से शाम को प्रेशर बनेगा. यस विक्रांत भाई, अगर शाम को 110 के ऊपर जाता है तो सब कमोडिटी में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा. Right. So that's the view coming in from Kunal Shah. Thank you, Kunal, for joining us on the show. Thank you, Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.